لگا کے ہٹ جاؤ, کچھ نہیں آ رہا ہے تو بتا رہا شروع کروں. معزز صافی حضرات کی BYC کی قیادت آج ہم معزز صافی حضرات, آج ہم اسلام آباد میں ایسے وقت میں جمع ہوئے ہیں جب اس ریاست میں انصاف کی آواز کو دبانے کی کوشش اپنے عروج پر ہے. ہم بلوچ یکجہتی کمیٹی کے اہلخانہ اور جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے اہلخانہ گزشتہ 19 دنوں سے شدید بارش, جھلسا دینے والی گرمی, سخت دھوپ اور ریاستی دباؤ کے باوجود یہاں دھرنا دیے بیٹھے ہیں. ہمارا مقصد کسی سیاسی فائدے یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے پیاروں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کے لیے ہے جو کسی قانونی جرم کے بغیر ریاستی اداروں کے طویل میں ہیں. BYC کی قیادت کو ایک بار پھر کوئٹہ میں عدالت میں پیش کیا گیا جہاں انصاف کی تقاضوں کو بری طرح پامال کیا گیا. BYC ہماری یہ پریس کانفرنس آج اس لیے بھی اہم ہے کہ کل اسی عدالتی کارروائی کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے, مگر یہ واضح ہے کہ اب ظلم صرف سڑک پر نہیں عدالت کے اندر بھی جاری ہے. 19 دن گزر چکے ہیں اور ہم نے ہر لمحہ کھلے آسمان تلے گزارے. بارش میں بھیگتے ہوئے, کپکپاتے ہوئے اور گرمی میں پسینے سے تر ہوتے ہوئے ہم نے پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کی, مگر افسوس کہ حکومت اور ریاستی ادارے اب تک مکمل بے حسی کا مظاہرہ کرتے رہے. کسی نے ہمارے دکھ کو سنجیدگی سے نہیں سنا, کوئی خاطر خواہ اقدام نہیں اٹھایا گیا. ہم سوال کرتے ہیں کیا اس ملک کے شہری ہونے کے باوجود ہمارے لیے انصاف کا دروازہ ہمیشہ بند ہی رہے گا؟ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کا رویہ ہمارے ساتھ نہ صرف غیر ہمدردانہ بلکہ افسوسناک حد تک غیر انسانی رہا ہے. پرامن احتجاج کے باوجود ہمیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے. بلوچ طلباء اور نوجوانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے, ان کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. کئی بار طاقت کے ذریعے دھرنا ختم کرنے کی کوشش کی گئی. کیا پرامن احتجاج کرنا جرم ہے؟ ہم نے نہ کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا, نہ کوئی غیر قانونی حرکت کی, پھر بھی ہمارے خلاف جبر کے تمام حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. ہم دنیا کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف بلوچ عوام کی نہیں بلکہ ہر اس شہری کی لڑائی ہے جو جمہوری حق کے احتجاج استعمال کرنے پر ریاستی جبر کا شکار ہوتا ہے. معزز صافی حضرات, اب ہم عدالتی کارروائی کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. گزشتہ روز ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور دیگر قائدین کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں پولیس کی جانب سے کوئی واضح شواہد یا پیش رفت نہ ہونے کے باوجود بار بار 14 دن کے تحت زیادہ جسمانی ریمانڈ ATC جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی جا رہی ہے. ہماری قانونی ٹیم نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا کہ انسداد دہشت گردی ایکٹ صرف ٹھوس شواہد کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے, مگر اس بنیادی قانونی اصول کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے 10 دن, پھر 15 دن اور اب مزید 20 دن کا ریمانڈ دیا گیا. بلوچستان کی عدالتیں جو انصاف فراہم کرنے کے بجائے ریاستی دباؤ اور سازشوں کی تابع دکھائی دیتی ہے, اب آئینی اصولوں کو پس پشت ڈال کر جبر کے نظام میں شریک جرم بن چکی ہے. عدلیہ کا کام آئین کا تحفظ اور شہریوں کو انصاف فراہم کرنا ہے, مگر بلوچستان میں عدلیہ خود نو آبادیاتی ذہنیت کے تحت فیصلہ سنا رہی ہے.
BYC की क़यादत का वाहिद जुर्म ये है कि वो पुरअमन और आइनी तरीके से अपने बुनियादी हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। इन पर दहशतगर्दी जैसे झूठे इल्ज़ामात डॉक्टर मारंग बलोच और पर आयद किए गए हैं और इन्हें इन कैद खानों में रखा गया है जहाँ दहशतगर्दों को रखा जाता है। ये तर्ज हमल तमाम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के मयारात की कुली खिलाफ वर्जी है। काबिल एहतराम साफ़ी हज़रात, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा अहम नुक्ता इस्लामाबाद के शहरियों से मुतल्लिक है जिन्हें हमारे एहतजाज के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम आप साफ़ियों के तवस्सुत से ये पैगाम इस्लामाबाद के शहरियों तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे एहतजाज से सड़कें बंद हुई और आवाम को मुश्किलात पेश आए, मगर इसकी असल जिम्मेदार हम पर नहीं बल्कि हुकूमत, पुलिस और इंतज़ामिया पर आयद होती है। हम जब इस्लामाबाद आए तो पुरअमन तौर पर प्रेस क्लब के सामने धरना देने के ख्वाह थे, वो जगह जहां हर शहरी कानूनी तौर पर एहतजाज कर सकता है, मगर हमें वहां इजाज़त ना दी गई। तमाम रास्ते बंद कर दिए गए, हत्ता कि प्रेस क्लब तक पहुंचने के लिए 2 से 3 दिन तक रुकावटें खड़ी की गई। हमने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे और हमारा एहतजाज मुतहिन मकाम पर हो, मगर हमें ताकत के जरिए रोका गया और मजबूरन सड़क पर बैठना पड़ा। अगर हमें कानूनी और पुरअमन जगह एहतजाज की इजाज़त दी जाती तो आवाम को किसी किस्म की रुकावट या दुश्वारी का सामना ना करना पड़ता। हम इस्लामाबाद के शहरियों से माजरत ख्वाह है, मगर ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे प्यारे बरसों से लापता है। वालिदैन तड़प रहे हैं, बहनें भाइयों की राह देख रही हैं, बीवियां अपने शोहरों की वापसी के लिए दुआओं में हाथ उठाए बैठी हैं। हम किसी को तकलीफ देना नहीं चाहते। हम खुद शदीद गर्मी, बारिश और तकालीफ के आलम में बच्चों और बुजुर्गों के साथ सड़क पर बैठने पर मजबूर है। हकीकत यह है कि रियासत और हुकूमत ने हमारे साथ आप इस्लामाबाद के अवाम को भी शदीद तकलीफ पहुंचाई है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम ये भी वाज़िया करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया हम पर मुकम्मल क्रैकडाउन करने पर आमदा है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के तमाम रास्ते बंद किए गए और हमें तरह तरह की अजियतें दी जा रही है। ताहम हम हब भी पुरअमन हैं और पुरअमन ही रहेंगे। हम इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया से आप सब की मौजूदगी में बातचीत करेंगे, उनसे दरख्वास्त करेंगे हमें इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि ना रास्ते बंद हो बल्कि इस्लामाबाद की आवाम और ताजिर मज़ीद तंग ना हो। हमें उम्मीद है कि हमें प्रेस क्लब के सामने पुरअमन तरीके से एहतजाज करने से नहीं रोका जाएगा। हम तमाम सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी से अपील करते हैं कि वो ज़ाती और जमायती मुफादात से बालातर होकर हमारे साथ खड़े हो। बलोच यकजहती कमेटी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियाँ महज एक ख़ानदान या एक ग्रोह का मसला नहीं है बल्कि एक इंसानी अलमिया है। आज ये जुल्म हम पर ढाया जा रहा है, कल को ये किसी और के दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। हम तमाम सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक के अदारों और वकला बरादरी से मुतालबा करते हैं वो इस गैर इंसानी तर्ज अमल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करे और हुकूमत पर दबाव डाले ताकि किसी शहरी को इसके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम न रखा जाए। आखिर में हम रियासत, हुकूमत और मुक़्तदिर क़ुव्वतों से कहना चाहते हैं, हम इस धरने से उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत को फौरी और बलाशत रिहा नहीं किया जाता। हम अपने प्यारों के लिए लड़ते रहेंगे, इंसाफ के लिए डटे रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये एहतजाज मज़ीद बड़ा होगा, मज़ीद आवाज़ें उठेंगी, मज़ीद लोग हमारे साथ शामिल होंगे। हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए, हमारे अज़म को कमज़ोर ना समझा जाए। हम ये लड़ाई अपने प्यारों की वापसी तक जारी रखेंगे। एक मरतबा पर हम आप तमाम साफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी आवाज़ को पहुँचाने में मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं। शुक्रिया। आज थोड़ी सी तब्दीली ये देख रहे हैं कि आज आपके साथ एक और एहतजाज भी शुरू किया गया है जी इस तरफ से लग रही है कि पंजाब के वो अफराद के जिनको और जो उनके पोस्टर वगैरह से वो आए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है कि पंजाब के जो लोग हैं वो भी निकल रहे हैं और अपने लोगों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो हमें कोई मसला नहीं है, वो अपना एहतजाज करें, हम अपना एहतजाज कर रहे हैं। नादिया, आप बताएंगे कि जो आपकी कल हियरिंग हुई तो मारंग का 20 दिन का रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया, दीगर BYC की क़यादत भी थी, सिद्दुल्लाह शाह और बीबो सब लोग, तो क्या आपको लगता है कोई उम्मीद नज़र आ रही है आपको इस जुडिशल सिस्टम के अंदर कि मारंग को यहाँ से इंसाफ मिलेगा?
हमें अगर उम्मीद जुडिशरी सिस्टम से होती तो हम यहाँ पे पिछले 19 दिनों से इस गर्मी में नहीं बैठे होते सड़कों के ऊपर. हम वहाँ के जो अदालती निज़ाम है, जो इंसाफ है, जो कानून है, उससे ना उम्मीद हो कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं. अगर वहाँ से हमें उम्मीद थोड़ी सी भी मिलती तो हम यहाँ पे नहीं होते, हम वहीं पे होते. लेकिन जिस तरह के रिमांड पे रिमांड दिया जा रहा है और उन केसेस में जिन पे रिमांड देने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, लेकिन उन पे रिमांड दिया जा रहा है. पहले तो कल तो जो हमारी वकला टीम थे वो कह रहे थे कि जो एडवोकेट जनरल्स थे वो कह रहे थे कि हमें 30 दिन के लिए रिमांड पे चाहिए. ये बाकी आपके पास पिछले 25 दिनों से रिमांड पे थे तो आपने तफ्तीश नहीं की, और अभी 30 दिन के लिए आप किस तरह की तफ्तीश करेंगे. और जब मैंने पूछा अपने फैमिली वालों से तो उन्होंने, जब वो डॉक्टर से मिले थे तो वो कह रहे थे कि हमसे ना कोई आया है तफ्तीश करने के लिए, ना आईओ आए हैं, ना कोई और आया है. और बाद में जब वो कोर्ट में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. आप वहाँ पे जाए तफ्तीश के लिए कि कोई आपके साथ कोऑपरेट करे. ये बहाने हैं और उन्हें सिर्फ साफ जाहिर बात है कि उन्हें रखना चाहते हैं अंदर. नादिया, ये बताइए कि नो डाउट आप 19 रोज़ से इन ख़वातीन के हमरा एक बड़े भरपूर एहतजाज कर रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से रियासत भी सख्ती जो है वो और ज़्यादा तेज़ कर रही है. तो आप ये सारा मामला एंड कहाँ पर होता हुआ देख रही हैं? क्योंकि आज दूसरे लोगों को भी उन्होंने इकट्ठा कर लिया. यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स भी आते हैं जो कि हरासा करने की कोशिश करते हैं. तो अल्टीमेटली आप क्या सोचती हैं कि ये कब तक चलेगा और कब तक कहाँ पे ये एंड होगा? ये तो मुझे लगता है कि रियासत के हाथ में है कि वो इसे किस तरह और कब ख़त्म करना चाहेगा. अगर वो इसे इसी तरह थूल देगा, ना हमारे साथ इंसाफ करेगा ना उनके साथ, तो ये इसी तरह ही इसका कोई हैंड नहीं दिखता. वो रियासत के हाथ में है कि वो कब इसे ख़त्म करना चाहे इस मसले को. नादिया, आपका मिनिमम कॉमन जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, जो जिसके नतीजे में आप लोग यहाँ का जो धरना आपने किया हुआ है जिसको आप एंड करते हैं? देखिए, मैंने पहले भी हम लोग कह चुके हैं, हमारे मुतालबा 2 ही हैं. जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो आए, हमारे मुतालबात को सुने. पूरा करना या ना करना तो वो दूर की बात है, लेकिन कोई नहीं आ रहे हैं हमसे हमारे मुतालबात सुनने के लिए. हमारे मुतालबात 2 ही है. BYC के जो जितनी क़यादत है उन्हें गिरफ़्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए. और बलूचिस्तान में पिछले 6 महीनों से जबरी गुमशुदगियों में, मारवाई अदालत कत्ल में, फेक इनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है, उसको ख़त्म किया जाए. और पहले से जितने भी जबरी तौर पर गुमशुदा लोग हैं उन्हें रिहा किया जाए. हमारे 2 ही मुतालबात हैं, और जब तक ये पूरे नहीं होते, मुझे लगता है कि इनमें से एक भी पूरा हो तो बड़ी बात है. अच्छा नादिया, ये बताएं कि आप लोगों के पास जमात इस्लामी का वफ्द आया था, उन्होंने कहा था कि लाहौर में राना सनाउल्लाह के साथ हमारी मुलाकात हुई है, कमेटी बनी है. कमेटी की तरफ से कोई रब्ता हुआ है आप लोग के साथ अभी तक? नहीं, कोई रब्ता नहीं हुआ है. किसी ने रब्ता करने की कोशिश भी नहीं की है. हमें नहीं पता कि वो उन्होंने किस तरह और किस पॉइंट्स पे मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन शायद उन पॉइंट्स में हमारे पॉइंट्स शामिल नहीं थे कि कोई कमेटी नहीं आई अभी तक. और कामयाब मुज़ाकरात हो गए वो चले गए. रियासत की तरफ से किसी फर्द ने भी आपसे कोई राब्ता नहीं, कोई नहीं आया अभी तक. अच्छा नादिया, आपको अपोजिशन जमातों के एहतजाज में भी बुलाया गया था, तो आप कैसा देखते हैं? पॉलिटिकल सपोर्ट कितनी ज़्यादा है? आप मुतमिन है पॉलिटिकल सपोर्ट से जो अपोजिशन जमातों की? ज़ाहिर हुकूमत तो सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन अपोजिशन जमातें क्या सपोर्ट कर रही हैं? ज़ाहिर एक सीरियस ह्यूमन राइट्स का इशू है जिसको आप लेकर बैठे. देखिए, हमें उस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, ये भी सपोर्ट ही है कि हमें मौका दिया गया. हम वहाँ पे गए और हमने अपनी बात रखी, जहाँ पे मीडिया है, जहाँ पे अपोजिशन के बाकी जो पार्टियाँ हैं वो आए हुए थे. तो ये भी मेरे ख्याल से एक सपोर्ट है. और जो इक़्तिदार में है उनसे तो अच्छे ही हैं, सपोर्ट कर रहे हैं हमें. तो मैं आप सब लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि हम जाएंगे वहाँ पे, जो पुलिस इंतज़ामिया बैठी हुई है हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग आए, ताकि कल के दिन ये हम पे एलिगेशंस ना लगाए कि रोड हमने बंद किए हैं, सड़कें हमने बंद की है. वो हमें इजाज़त दे दें, हम जो है ना इन लोगों को लेकर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने कैंप लगाएंगे, ताकि यहाँ के जो जितने भी शहरी है या ताजर बरादरी है उन्हें तकलीफ़ ना हो, उन्हें कोई नुकसान ना हो. और ये मीडिया के उसमें प्रूफ होगा कि हमने कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद जो पुलिस इंतज़ामिया है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है. ये बताइएगा, जैसे आपने बोला भी कि गवर्नमेंट से कोई यहाँ पर नहीं आया आपके जो मुतालबात हैं वो सुनने के लिए ताकि वो हल हो सके, क्या आप लोगों का कोई और लाहे अमल है कि आप लोग रिटर्न वज़ीर आज़म को लिखेंगे, चीफ जस्टिस को लिखेंगे, या फिर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बार्स हैं, क्या फर्दर क्या लाहे अमल है?
देखिए इस तरह का कोई लायामल फ़िलहाल तो हमने नहीं बनाया कि उनको कुछ लिखना है भेजना है। फ़िलहाल हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आए यहाँ पे हमारी जो मुतालबात है उन्हें सुने और हमें सुनने की कोशिश करें। वो उसके बारे में हमने फ़िलहाल कोई इस तरह का लायामल तैयार नहीं किया। थैंक यू। आप लोग हमारे साथ आएँ, ये जो इस्लामाबाद पुलिस इंतज़ामिया है उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रेस क्लब की जानिब पेशकदमी करेंगे, क्योंकि उनका मानना ये है कि जिस तरह से कुछ लोग अदालत में भी गए हैं कि रोड्स वगैरह बंद हैं ताकि ये रोड्स खाली कराए जाएं, तो उनका मानना यह है कि जिस तरह से बाकी मुजाहिरीन जो हैं वो एहतजाज करते हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने, तो ये लोग अभी पेशकदमी करेंगे नेशनल प्रेस क्लब की जानिब ताकि इनको वहाँ पर एहतजाज करने का जो हक़ है वो दिया जाए। और ये लोग ये मीडिया की प्रेजेंस में करना चाहते हैं ताकि किसी किस्म का कोई उन पर इल्ज़ाम ना आए कि शायद उन्होंने कोई कानून तोड़ा है या किसी ऐसी जगह जाने की कोशिश की है। तो उनका सिर्फ एक अभी फ़िलहाल मुतालबा यही है कि हमें नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है कैंप लगाने की इजाज़त दी जाए। तो ये सब लोग अब वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, उस जानी पुलिस भी है, ये थोड़ी रस्सियाँ लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है। हम आपको बराह रास्त ये मनाज़िर दिखा रहे हैं।